Hello everyone. Today I am going to discuss about the blood pressure. In the previous lecture, I have discussed the structure of heart, the physiology and working of heart, blood vessels. These all I have discussed in the previous lectures. Cardiac cycle, blood vessels क्या होती हैं, cardiac cycle क्या होती है, normal physiology. What do you mean by the normal physiology of heart, normal working of heart? Now this is the next topic and this is the last topic for this chapter. This CVS, cardiac vascular system. This is blood pressure and its regulation and blood pressure and its regulation. In this topic we have to study about the blood pressure, what is blood pressure and how the regulation of blood pressure takes place. Okay, so first thing, what do you mean by the term blood pressure? Blood means blood, you know, blood is a connective tissue and it flows in the blood vessels. Now pressure created, so the pressure generated by the blood to its blood vessels. As you know, the blood is flowing, blood जो है वो blood vessels में flow कर रहा है and it reaches to different parts of the body through heart. But the pressure, and it also create the pressure, it create the pressure to the walls of blood vessels. ठीक है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स है उन पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा. जो सपोज ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, ट्यूब्स में, देन इट विल क्रिएट अ प्रेशर इन दिस ब्लड वेसल्स विच इज़ नोन एज अ ब्लड प्रेशर. ठीक है, नाउ साइंटिफिक डेफिनेशन की हम बात करें तो इट इज़ अ लेटरल प्रेशर. इट इज़ द लेटरल प्रेशर. लेटरल प्रेशर exerted by the blood. Lateral pressure exerted by the blood to the या on the walls of blood vessels, on the walls of blood vessels. ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ लेटरल प्रेशर. सी हियर, इट इज़ अ लेटरल प्रेशर exerted by the लेटरल मीन्स साइड में, जो ब्लड वेसल्स की साइड से उनमें क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है. बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है उनमें लेटरल प्रेशर जो लग रहा है, इट इज़ नोन एज अ ब्लड प्रेशर. ओके, और डेफिनेशन भी दे सकते हैं इसको हम, और भी हो सकता है इसमें. नेक्स्ट, the pressure, it is the pressure और force. pressure और force क्या बोल सकते हैं इसको? हम प्रेशर बोल सकते हैं और फोर्स बोल सकते हैं. that the blood exerts on the walls of blood vessels. ओके, तो ये इसको भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. और दूसरा भी इसमें एक और इसमें डेफिनेशन दे सकते हैं, द सिस्टेमिक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर. दिस इज द सिस्टेमिक आर्टीरियल. सिस्टेमिक मीन्स इन द बॉडी, पूरी बॉडी में जो फ्लो हो रहा है उस तरह से. So we can define the blood pressure as the lateral pressure exerted by the blood on the walls of blood vessel. ठीक है, ये क्या है? लेटरल प्रेशर है, मीन्स साइड में लग रहा है प्रेशर. ये द ब्लड वेसल्स के साइड में प्रेशर लग रहा है विच इज़ नोन एज ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, और भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो और है इसकी, दिस इज द प्रेशर और फोर्स दैट द ब्लड exerts on the walls of blood vessels. सिंपली बोल सकते हैं इसको, if we are not using the lateral word, तो सिंपल दिस इज द प्रेशर और फोर्स दैट द ब्लड exert on the walls of blood vessels. और क्या हो सकता है इसमें? दिस इज द systemic arterial blood pressure. This is the systemic arterial blood pressure. जो सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका? इट इज द प्रेशर exerted और एज ए रिजल्ट, pressure results due to discharge of blood
due to discharge of blood from the left ventricle into the already filled aorta. Okay, so another definition is that the systemic arterial blood pressure, जो systemically जो blood pressure लग रहा है वो क्या होता है? systemic arterial blood pressure result किस तरह से होगा? result due to the discharge of blood, जो blood discharge हो रहा है, discharge from the left ventricle से into the left ventricle into the already filled aorta. If the aorta are already filled with the blood, now if the pressure exerted by the left ventricle by the blood, then this is known as a systemic arterial blood pressure. Okay, now this blood pressure is divided into two types of pressure, that is systolic and diastolic. Okay, as we have already studied in the cardiac cycle, what do you mean by the word systole? Systole means contraction. Systole means क्या होता है? Contraction. Systole is contraction. Okay, and diastole means relaxation. Diastolic or diastole. Here diastole means relaxation. The whole working of heart depends on the contraction and relaxation of cardiac muscles of either auricles, एट्रियम और वेंट्रिकल्स. एट्रियम, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं, मसल वॉल है, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे ही पूरी वर्किंग डिपेंड करती है हार्ट की. सो देयर इज टू टाइप ऑफ ब्लड, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी. सो वी कैन डिफाइंड एज सिस्टोलिक फर्स्ट, सिस्टोलिक बीपी. So systolic blood pressure can be defined as when the left ventricle contracts. Here systolic means contraction, so due to contraction. Okay, systolic means contraction. So when the left ventricle जो left ventricle है, when the left ventricle contracts, left ventricle contract करेगा and pushes blood into the aorta. Okay, into the aorta. Pressure produced. Here जो pressure produce हो रहा है, pressure produced within the arterial system. Pressure produced within the arterial system. Within the arterial system. Okay, so systolic blood pressure is as we know systole is the contraction of blood vessels, contraction of muscles, sorry. So when the left ventricle contracts, contract होंगे and pushes blood, contract होके वो blood push करेंगे कहाँ? Into the aorta. Okay, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा, प्योर ब्लड. देन द प्रेशर प्रोड्यूस विद इन द आर्टेरियल सिस्टम. उस आर्टेरियल सिस्टम में क्या होगा? एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा. दिस इज नोन एज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इसकी नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू इसकी सिस्टोलिक की 120 mmHg. ओके, नाउ नेक्स्ट ये ज़्यादा होता है. As you know, the pressure in the arteries, because they are carrying the pure blood, oxygenated blood, they always have a high pressure. They apply the blood with the high pressure. So next one is diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure. Okay, so diastole, as you know, diastole is a relaxation. Diastole is relaxation होता है. So how can we define the diastolic blood pressure? So in complete cardiac diastole
incomplete cardiac diastole when the heart जो heart है हमारा, when the heart is resting is now diastole relaxation, मतलब इसमें कब होगा, रेस्टिंग के टाइम पे, when the heart is resting, जब heart क्या करेगा, रेस्टिंग पर है, रेस्टिंग following the ejection, following the ejection of blood, the pressure within the arteries, the pressure within the arteries, ठीक है, प्रेशर विद इन द आर्टरीज जो लग रहा है आपका इज मच लोअर, वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, आर्टरीज इज मच लोअर, ओके. सो दिस इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. द इनकम्प्लीट कार्डियक साइकिल, एक पूरी कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में, कंप्लीट डायस्टोल, नॉट अ कार्डियक साइकिल, नॉट अ कार्डियक सिस्टोल, इनकम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल. व्हाट हैपन व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग, जब रेस्ट पे होगा, डायस्टोल में क्या होगा, रेस्ट पे होगा हार्ट हमारा, इट फॉलोइंग द इजेक्शन ऑफ ब्लड, द ब्लड का इजेक्शन भी हो रहा है, द प्रेशर विद इन द आर्टरीज इज मच लोअर, उस टाइम क्या होगा, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा. तो एंड इट्स नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें इसकी, तो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 80 mmHg, कम होती है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो इफ यू टॉक अबाउट द टोटल ब्लड प्रेशर जो होता है आपका, देन BP ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड एज अ सिस्टोलिक BP and diastolic BP. नॉर्मल रेंज क्या हो जाएगी इसकी, नॉर्मल रेंज है इसकी 120/80 mmHg. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, सपोज हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी में क्या होगा आपका, ठीक है, इसमें बढ़ेगा आपका, तो हाई बीपी में क्या होगा, एवव 140/90 mmHg. ओके. नाउ अगर लो होगा, लो बीपी में क्या हो जाएगा, लेस देन इसकी वैल्यू होगी आपकी लेस देन 90/60, कम हो जाएगा 60 mmHg. So these are some ranges of blood pressure. क्या हो जाएगा, नॉर्मल आपका है इसमें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg. ओके. एंड हाई बीपी इज above 140/90 mmHg. एंड लो ब्लड प्रेशर इज less than 90/60 mmHg. And the upper value is known as a systolic BP and lower value is known as a diastolic BP. Next, now what are the factors that determine the blood pressure? Factors determining blood pressure. Factors determining blood pressure. Okay, so what are the factors that determine the blood pressure? That these are age. I will just write the factors and explain you. Age, okay, gender. Then next one is body build. Next one is here. Next one is after meals. भी बढ़ता है, कम होता है. Then next one is during sleep. Okay. Next one is emotional conditions. Next is after exercise. Okay.
diurnal variations. So these are some factors that determine the blood pressure. ये कुछ factors हैं जो blood pressure को determine करते हैं. Means these factors decide that the blood pressure is high or it may be low. High हो सकता है या low हो सकता है, ये decide करते हैं factors. तो कौन कौन से हैं इसमें? First one is age. So age, okay. So age is the first factor, very important factor, because according to age also the blood pressure varies. Blood pressure जो होता है, BP होता है, वो age के according भी vary करता है कि चिल्ड्रंस में अलग होगा, इन्फेंट्स में अलग होगा, एडल्ट में अलग होगा, और इन द आफ्टर ओल्ड एजेस में ब्लड प्रेशर में डिफरेंस आएगा. देन जेंडर, नेक्स्ट वन इज जेंडर. मीन्स जेंडर, the blood pressure also varies with the male and female. The blood pressure is different for the male and different for the female. Body build, according to body build also, means the person is fatty, the person is obese. For the obese patient or for the thin person, the blood pressure are different. Now after exercise or before exercise, if you are not doing any exercise or if you are doing the exercise, then the blood pressure also varies. कि आप exercise कोई exercise नहीं कर रहे हैं sorry, and if you are doing the exercise तो उसमें blood pressure में variation आएगा. अगर exercise करें, exercise के बाद में blood pressure में variation आएगा. After meals also, okay. So खाना खाने से पहले आपने खाना खाया हुआ है, if you have taken a lot of amount of salt, then also your BP varies. कि आपने ज़्यादा सॉल्ट खा लिया तो मे बी द BP इंक्रीज हो सकता है आपका. बहुत कम सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं तो मे द BP लोअर्स डाउन. So after meals also the BP varies. The next one is during sleep. During sleep, okay, when you are awake and when you are sleep, when you are going to sleep, या हम गहरी नींद में हैं या awake हैं, then also your BP varies. ठीक है, awake हैं तो BP क्या होगा आपका, या during sleep है तो BP आपका क्या होगा. Emotional conditions. Now emotional conditions also, if you are happy or if you are sad, it also matters. कि आप happy हैं, बहुत ज़्यादा happy हैं, बहुत ज़्यादा sad हैं, then also your BP varies. Diurnal variations mean diuresis condition, okay. It depends कि how much of the water, the liquid portion or the water portion from the body is excreted out or not. ज़्यादा होगा तो BP blood pressure बढ़ जाएगा, कम होगा तो blood pressure decrease होगा, okay. So these are the factors that determine the blood pressure. Next is now what is hypertension. What are the conditions for hypertension? Hypertension means high BP. Hypertension is also called as a high BP. And next is hypotension. Hypotension is low BP. ठीक है. Now कैसे, किस तरह से बढ़ेगा इसमें, ये इस तरह से. सपोज ये आपका हाई बीपी है, किस तरह से बढ़ेगा आपका, ठीक है. हियर लो बीपी, okay. So how this varies? Age, obesity. First we talk about the high BP. तो ब्लड प्रेशर बढ़ कैसे रहा है, तो एज, ओबेसिटी, okay. Next thing, exercise. These factors are there, all the factors are there. Now we divide these factors according to the conditions, कि which factors increase, which factor decrease in the different conditions, okay. Exercise, then illness, then medicament, okay. मेडिकामेंट में आपका इसमें हो सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके. तो हाई बीपी की हम अगर बात करें तो हाई बीपी में क्या है आपका, एज के साथ बढ़ता है हाई बीपी, एज के साथ बढ़ रहा है आपका, ठीक है. ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है तो बीपी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपका. एक्सरसाइज इंक्रीज हो रही है, देन ऑल्सो योर बीपी इंक्रीजेस. एंड इलनेस, तो बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, इलनेस ज़्यादा हो रही है, देन इट लीड्स टू हाई बीपी. एंड मेडिकामेंट में आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो स्पेशली विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, इनको लेने से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ओके. नाउ वी टॉक अबाउट द लो बीपी कंडीशन. फॉर दिस क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं इसमें, ब्लीडिंग, ओके. नेक्स्ट हो सकता है इसमें ब्लीडिंग के बाद में आपका बर्न्स,
बर्न्स हो सकता है इसमें, वॉमिटिंग, डायरिया, ओके, डायरिया, देन मेडिकामेंट में आपका इसमें आते हैं मेनली बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो हाइपरटेंशन का हो गया आपका। नाउ हाइपोटेंशन, इफ यू टॉक अबाउट द हाइपोटेंशन की बात करें तो ये क्या होता है, लो बीपी। तो लो बीपी की कंडीशन में, लो बीपी कंडीशन कौन से फैक्टर्स हैं, विच फैक्टर्स लीड्स टू द लो बीपी, कौन से फैक्टर्स आपके लो बीपी कंडीशन को लीड करेंगे। तो पहला इसमें ब्लीडिंग मे बी ड्यू टू एनी इंजरी, कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस वजह से ब्लीडिंग, या इंटरनल कोई ऑर्गन में ब्लीडिंग हो गई है, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो सपोज ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग ऑल्सो लीड्स टू द लो बीपी लो हो जाता है, ड्यूरिंग मेंसेस बीपी आपका लो हो जाता है। देन बर्न्स, इफ़ यू कॉज एनी बर्न्स इन द बॉडी, कहीं बर्न हो गया आपका, कट लग गया है, देन ऑल्सो द बीपी लोअर्स। वॉमिटिंग, ड्यूरिंग वॉमिटिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो भी आपकी सॉल्ट वगैरह है, मिनरल्स है, वो वॉमिटिंग में निकल जाते हैं बाहर, डेट्स वाई इट लीड्स टू द लो बीपी हो जाता है आपका। डायरिया ऑल्सो, in diarrhea also what happen, there is a excretion of a lot of amount of minerals, water, salt, जो minerals हैं, electrolytes हैं, water हैं, salt हैं, वो डायरी में आपके निकल जाते हैं। तो that leads to low BP, इसलिए क्या होगा, लो बीपी होगा। देन मेडिकामेंट की बात करें तो कौन सी ड्रग है, विच ड्रग लीड्स टू लो बीपी, कौन सी ड्रग है जो लो बीपी के लिए लीड कर रही है, दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि लो बीपी कॉज करती हैं। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच लीड्स टू लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, हम कैसे पता लगा सकते हैं। वन इंस्ट्रूमेंट यूज, फर्स्ट से एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए जो यूज़ करते हैं हम, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, बीपी मेजर करते हैं। बट व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, कि हम कौन कौन से इसके फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं इससे, जिससे कि हम एक्चुअली पता लगाते हैं कि ब्लड प्रेशर कम है, लो किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होंगे, तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें। कार्डिक आउटपुट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द कार्डिक साइकिल लेक्चर, का जो लेक्चर था हमने उसमें पढ़ा हुआ है कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट, ओके। नेक्स्ट वन इज कार्डिक आउटपुट है। नेक्स्ट इज हार्ट रेट से पता लगा सकते हैं इसमें हम कि ब्लड प्रेशर आपका लो है कि हाई है। देन नेक्स्ट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसमें ब्लड वॉल्यूम, ओके। द नेक्स्ट इज ब्लड वॉल्यूम के बाद में आपका वीनस रिटर्न। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, नेक्स्ट इज बाद में विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, okay. So what are determinants? These are those determinants which are directly proportional, means इनके बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, इनके कम होने से ब्लड प्रेशर कम होगा। So these are directly proportional। क्या क्या है इसमें आपका, कार्डिक आउटपुट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हार्ट रेट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस का, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, वीनस रिटर्न मींस वेन्स में कितना आपका ब्लड रिटर्न हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, विस्कोसिटी उसका गाढ़ापन कितना है ब्लड का। दीज ऑल फैक्टर्स आर द डिटर्मिनेंट्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर, मींस ये इंक्रीज होंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये डिक्रीज होंगे तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। सम मोर फैक्टर्स आर देयर, सम मोर डिटर्मिनेंट्स आर देयर,
These are elasticity of blood vessel, and another is, दूसरा आपका इसमें है diameter of blood vessels, diameter of blood vessels. Okay, so elasticity of blood vessel and diameter of blood vessels, these are those two factors. ये क्या होंगे? These are inversely proportional. What do you mean by the word inversely proportional? Means ये बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ये कम होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. तो इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल, कितना इलास्टिक है वो ब्लड वेसल का, एंड डायमीटर, कितना डायमीटर है ब्लड वेसल का, दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, नाउ बीपी रेगुलेशन. ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे होता है? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से रेगुलेट हो रहा है. सपोज हमारी बॉडी में एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये कम हो गया. सो फर्स्ट थिंग व्हाट हैपन, सबसे पहले क्या होगा, हमारी बॉडी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी. बिकॉज दे हैव सो मेनी सिस्टम्स, बॉडी में सिस्टम्स होते हैं. वो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा नहीं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कम हो गया है, वो होता है, कम होता है, बढ़ता है, लेकिन क्या करती है बॉडी सबसे पहले उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है थ्रू डिफरेंट मेथड्स. देन अगर वो रेगुलेशन नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू गो फॉर द मेडिकेशन. बॉडी अपने आप ही उसको कंट्रोल कर देती है, रेगुलेट कर देती है अपने आप नॉर्मल. ऐसा नहीं कि हमेशा आपका सपोज किसी ड्यू टू एक्सरसाइज व्हाट हैपन, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बट आफ्टर सम टाइम वो आपका नॉर्मल हो जाएगा. सो कैसे हो रहा है वो, देयर आर सम रेगुलेशंस इन द बॉडी जो कि उससे रेगुलेट हो रहा है. ऐसा नहीं कि आपने एक्सरसाइज करी उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और आपको तुरंत उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता है आपका. ठीक है. तो कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है और घटता भी है, और अपने आप वो मैनेज हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है. पर ये कंडीशन लंबे समय तक अगर चल रही है, आपकी रेगुलेशन नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू गो फॉर द मेडिकेशन. सो हाउ द ब्लड प्रेशर गेट रेगुलेटेड, और रेगुलेशन उसका कैसे हो रहा है ब्लड प्रेशर का. ठीक है. तो इसका मेनली थ्री फॉर्म्स हैं आपके, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, इंटरमीडिएट रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन. तीनों हैं इसके. हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन मेन पढ़ेंगे इसमें. सो फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, थोड़ी देर के लिए. शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, सो हाउ दिस हैपन, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कैसे होगा इसमें. दे आर डिफरेंट मेथड्स फॉर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन. तो ये आपका होता है, इट अकर्स, ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो हो रहा है, इट अकर्स विद इन सेकेंड. ये क्या होगा आपका, विद इन सेकेंड कंट्रोल हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा. बीपी बढ़ा है तो विद इन सेकेंड उसका रेगुलेशन हो जाएगा. विद इन सेकेंड. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग, it is under nervous control. It is under nervous ये नर्वस कंट्रोल के अंदर में है. अब कौन कौन सी इसमें मैकेनिज्म, पहली चीज़ क्या होता है, ये विद इन सेकेंड कंट्रोल हो जाता है, विद इन सेकेंड रेगुलेट हो जाता है, एंड इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल. ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से ही होता है आपका. अब क्या क्या मैकेनिज्म होगी इसमें, कौन कौन सी मैकेनिज्म हो सकती है, कौन कौन सी इस मैकेनिज्म फॉलो होगी इसमें. तो इसमें मेनली कौन कौन सी है, इसमें 3 मैकेनिज्म होती है. डेट इज बैरो रिफ्लेक्स, एंड दूसरा इसमें आपका है कीमो रिफ्लेक्स, और नेक्स्ट है इसमें CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स. ठीक है. क्या क्या मैकेनिज्म है इसमें, बैरो रिफ्लेक्स, कीमो रिफ्लेक्स, CNS इस्कीमिक रिफ्लेक्स. ठीक है. 3 है इसमें. तो पहला आपका इसमें है बैरो रिफ्लेक्स. क्या होता है बैरो रिफ्लेक्स, किस तरह से बीपी को कंट्रोल करता है. तो पहला इसमें आपका है बैरो रिफ्लेक्स. इसकी मैकेनिज्म किस तरह से फॉलो होती है. तो इसमें क्या होगा, इसमें नर्वस कंट्रोल होता है, और इसमें जो बैरो रिफ्लेक्स है ये क्या है, इसमें भी क्या होगा कि जो सपोज आपका बीपी बढ़ा,
बीपी इंक्रीज हो गया, जैसे भी बीपी आपका इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक कुछ बैरो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, आपका बीपी को लो कर देंगे। तो किस तरह से होगा इसमें, तो इंक्रीज इन फर्स्ट इंक्रीज इन बीपी, सपोज आपका बीपी इसमें इंक्रीज हुआ, देन व्हाट हैपन, जो आपकी क्रेनियल नर्व्स है, 2 क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व आपकी 9th नंबर एंड 10th नंबर की, 9th और 10th नंबर की आपकी जो ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व जो होती है, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व, ठीक है, ये दोनों नर्व जो आपकी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और क्या होगा इसमें, यहाँ पर बैरो रिसेप्टर, बैरो रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं, यहाँ पर बैरो रिफ्लेक्स सेंटर्स आर प्रेजेंट हियर, तो कुछ बैरो रिफ्लेक्स सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ इसमें आपके, इट इनएक्टिवेट SNS, ठीक है, और एक्टिवेट क्या करेंगे, एक्टिवेट किसको करेंगे, ये PNS, सो SNS है, PNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके, एंड PNS इज पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या होगा, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, जो क्रेनियल नर्व है आपकी, इसमें कौन सी वाली, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस जो नर्व जो होती है, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व आपकी जो होती है नेक रीजन में आती है आपकी, वहाँ पर आपके बैरो रिफ्लेक्स सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट होंगे, वो क्या करेंगे, इट इनएक्टिवेट द SNS, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको इनएक्टिवेट करेंगे, और क्या, क्योंकि हमें क्या करना है, बीपी को लो करना है, बीपी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है बीपी, तो लो करने के लिए हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इट एक्टिवेट्स, देन ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक्टिवेट होने से जो बीपी है इट कॉजेज डिक्रीज बीपी, ठीक है, एंड डिक्रीज हार्ट रेट। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसमें, ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन बीपी। तो ये आपका बैरो रिफ्लेक्स का ओवरऑल इफेक्ट है, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ बैरो रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, बैरो रिफ्लेक्स हो गया। जो बैरो रिफ्लेक्स सिस्टम है वो किस तरह से आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर्स किस तरह से आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स होते क्या है, दीज आर द केमिकल रिसेप्टर्स, केमिकल होते हैं। तो क्या है, सपोज आपका जो टोटल आपका आर्टीरियल प्रेशर है वो कम हो गया, इसमें क्या होगा कि आपका जो आर्टीरियल प्रेशर है वो 70 से कम हो गया, इफ लेस देन 70 mmHg, 70 mmHg, लेस देन 70 mmHg से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो क्या होगा, इसमें जो बैरो रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस क्या होगा, आपका जो बैरो रिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर विल नॉट रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, विल नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आपके। देन व्हाट हैपन्स, दीज हैव टू वर्क, ये आपके करेंगे। तो ये क्या होती है, जो कीमो रिसेप्टर, इसमें ये क्या हो गया, ये आपके क्या हो गए, दीज आर, वो बैरो रिसेप्टर क्या थे आपके, फर्स्ट लाइन थे आपके, फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल था। ये क्या था आपका यहाँ, दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे सेकेंड लाइन ऑफ कंट्रोल, दीज आर द सेकेंड लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इनमें क्या होगा, आपका जो कीमो रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमियस सेल्स भी बोलते हैं इनको, ग्लोमस सेल, कीमो रिसेप्टर सेल्स ऑल्सो कोल्ड क्या बोलते हैं इनको हम, ग्लोमस सेल्स, ठीक है, इनको हम ग्लोमस सेल्स भी बोलते हैं। अब क्या होगा, इनमें जो आर्टरी, सपोज आपका आर्टरी, ये कीमो सेंसिटिव सेल्स हैं, इनको सपोज आपका इसकी प्रोसेस क्या होगी, बीपी डिक्रीज, बीपी कम हो गया, देन व्हाट हैपन्स, जैसे बीपी कम हुआ, आपका आर्टरी प्रेशर फॉल हो गया, देन इट कॉज हाइपोक्सिया, ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कम हुआ तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया क्या होता है आपका, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, हाइपोक्सिया। देन इट में लीड्स टू, हाइपोक्सिया हुआ, देन क्या होगा, जो कीमो रिसेप्टर है आपके, कीमो रिसेप्टर गेट्स स्टिमुलेटेड, कीमो रिसेप्टर गेट्स स्टिमुलेटेड, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे,
ठीक है, स्टिमुलेट हो जाएंगे और क्या होगा, देन इट एक्साइट्स द वैसोमोटर सेंटर, ठीक है, उसको एक्साइट कर देगा, देन इट विल एक्टिवेट। अब हमें क्या जरूरत है, बीपी बढ़ाना है, तो क्या करेगा वो, इट एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके कीमो रिसेप्टर्स वर्क करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका इसमें CNS स्कीमिक रेस्पॉन्स। CNS हमें शॉर्ट टाइम वाले पढ़ने, इंटरमीडिएट और बाकी आपके तो नहीं पढ़ने हैं इसमें। CNS स्कीमिक रिस्पॉन्स, CNS स्कीमिक रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है, CNS स्कीमिक रिस्पॉन्स में ये थर्ड और लास्ट लाइन बोल सकते हैं इसको हम, दिस इज थर्ड और लास्ट लाइन बोल सकते हैं इसको, लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सपोज बीपी में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो बीपी में फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होगा, नर्वस कंट्रोल मैकेनिज्म होती है। तो फ्लक्चुएशन हुआ बीपी में, क्या होगा, फ्लक्चुएशन इन बीपी क्या हो जाएगा इसमें आपका, सीने से डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। इसमें क्या होगा आपका, तो फ्लक्चुएशन बीपी हो गया इसमें, तो अब पहले कहाँ गया मैसेज, आपका नर्वस सिस्टम के पास में, ठीक है, नर्वस सिस्टम का मैसेज गया, फिर हमें क्या होगा, जो आपका ये किस फॉर्म में रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ वेव्स के फॉर्म में, ठीक है, वेव्स में रिकॉर्ड होगा आपका, और इसको क्या बोलते हैं हम, मेयर वेव्स, कॉल्ड मेयर वेव्स, ठीक है। मेयर वेव्स में तो होगा, इस पर क्या होगा, देन बस इन वेव्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और वो रिस्पॉन्स शो करेगा, बस इतना ही इसमें आपको देखना है। जो CNS स्कीमिक रिस्पॉन्स है, तो थर्ड लाइन ऑफ कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होता है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और फॉर्म कुछ वेव्स की फॉर्म में उसको रिकॉर्ड कर लेगा, इनको मेयर वेव्स बोलते हैं। और आपके अगर कुछ और अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो और भी इसमें वेव्स के नाम होते हैं, तो ये वेव्स के फॉर्म में इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद आपके और भी होते हैं, ये तो हो गया आपके इसमें शॉर्ट एक्टिंग वाले। बीपी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में आपका ये हो गया आपका फर्स्ट शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हो गया, दिस इज शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। नाउ इंटरमीडिएट रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, देयर इज नो नीड टू रीड देम इन द डिटेल, जस्ट टू नो द नेम्स ओनली, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट है आपका इसमें सेकेंड जो है आपका इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन, एंड लास्ट है आपका इसमें लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन में क्या होगा, इसमें इट टेक्स मिनट्स टू आवर्स। जो आपका शॉर्ट टर्म रेगुलेशन था उसमें क्या था, विद इन अ सेकेंड बीपी का रेगुलेशन हो रहा है। इंटरमीडिएट में इट टेक्स मिनट से लेकर इसमें आवर्स भी हो सकता है, आवर्स, ठीक है। मीन्स रेगुलेशन होने में, बीपी का रेगुलेशन होने में 1 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी इसमें लग सकता है। लास्ट आपका इसमें लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, इट टेक्स अ डेज टू मंथ, कुछ दिन या कुछ मंथ तक इसमें रेगुलेशन हो सकता है। तो इसकी क्यूरेशन के लिए हम मेडिकेशंस यूज़ करेंगे, डेज टू month. So this is the regulation of blood pressure, short term regulation, intermediate term regulation and long term regulation. Okay, in the next chapter, so this chapter is completed, cardiovascular system. In the next lecture we will discuss about the next topic.